मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। तैंडी बंदिश में कोई ना डिठा, तू नानक मन भाना। घोल कमाई तिस मित्र विचोले, जै मिल कंत पछाना। तू सुल्तान कहाँ होमिया, तेरी कवन वडाई। जो तू देही सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, हर जेठ जुड़ंदा लोड़ीए। जिस अगे सब निवन, हर सज्जन दावन लगिया। किसे ना देई बन, मानक मोती नाम प्रभ। उन लगे नामी सन, रंग सबे नारायणे। जीते मन पावन, जो हर लोड़े सो करे। सोई जी करन, जो प्रभ कीते अपने। सेई कहिए धन, आपन लिया जे मिलै। बिछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ति। नानक रंग मनन, हर जेठ रंगीला तिस धनी। जिसकै भाग मथन, हर जेठ रंगीला तिस धनी। जिसकै भाग मथन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार विच जोड़ अति विछोड़, संयोग अति विजोग, इसका वरतारा रोज बदलता है। जड़ियां भी चीज़ां अपने असले नाल जुड़ियां रहिंदियां ने, वो सुख पाउंदियां ने। जड़ियां भी चीज़ां अपने असले तो टुट जांदियां ने, वो दुख पाउंदियां ने। जितना चिर कोई चीज़ अपने असले नाल जुड़ी है, उसदा खेड़ा, खुशी, आनंद बरकरार रहता है। गुरुदेव सच्चे पातशाह ने सानू अध्यात्मक जीवन की सोची दिंदियां इस संसारक मिसालां दे के अंदर की सोची बख्शिश की है। इसे तरह साडे जीवन का असला भी परमेश्वर है, निरंकार है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। समुची कायनात, समुचा संसार रब दे विचों पैदा होया, इसलिए असला वो है, पिछोकड़ वो है। शायद आखते ने कहेंगे, जे मना तो जीवन में सुख पाना चाहना है तो अपने असले नाल जुड़न की कोशिश कर, अपने प्यारे नाल जुड़न की कोशिश कर। अमृत बाणी के वचन ने बड़े प्यारे, सतगुरु कृपा करते ने, बख्शिश करते ने। कह लगे, भलिया मैं तेन समझाना चाहना है, मालिक के चरणों नाल प्रीत पा लगे। प्रभ चिते आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सबका मोहताज। दो पंक्तियां सानू कितना बड़ा जीवन का रहस्य बख्शिश करती हैं।
जुड़ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਨਾਂ ਪੂਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੀ ਘਾਹ ਘਾਹ ਖਾਨ ਤਿਨ ਮਾਸ ਖਵਾਲੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਰਾਹ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਖਾਲੇ ਥਲੀ ਕਰੇ ਉਸਕਾ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ ਜੀਤੇ ਜੀ ਜੀਵੇ ਲੈਸਾ ਜਿਵਾਲੇ ਥਾਂ ਕੇ ਅਸਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਆਨ ਨ ਸੰਸਰ ਕੋ ਡਾਕੇ। ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਮ ਉੱਚਾ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਲੱਭਿਆ ਭਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੱਠ ਜਵਾਜਾ। ਬੰਦਾ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਅਧੂਰੇ ਨੇ। ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਅਧੂਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੁੜ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਠਾकुर ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। मेरे हर जीव सब को तेरे बस असा जोर नहीं, जे किस कर हम सकै जो भावे तिवें बख्श। कीता करना सर्ब रजाई किस कीजै जे कर सकिए। वदी सो बजग नानका सच्चा देखे सोई, सब ने छाला मारियां करता करे सो। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜ ਮਨਾ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੱਜਣ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣਤਾ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਬੰਨ। ਦਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਧ ਵਿਖੇ ਵਿਖਰਾਤੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਦੀ। ਪਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਲਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪੈਂਡੀ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦੇ।
रहमत कर, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, करके लिहो ओढ़ निभावै। अन्ना मनुख किन्ने क रस्तियां नूं पुछदा फिरेगा, ठोकरां खाएगा। कितना चंगा होवे करके लिहो, अब मेरा हाथ पकड़ लो सतगुरु जी, ओढ़ निभावे ते मैनू आखिर तक छड्ड लो। हम अंदले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंदले को गुर अंचल दीजे। अंचल शब्द का अर्थ भी पल्ला है। जन नानक चले मिलंथा, मालिक कृपा कर मैनू अपनी बख्शिश का पल्ला पकड़ा दे। इतिहासक पन्नियां ते उकरी हुई सच्चाई अज आप साझी कर रहे हैं। गुरु अर्जन पातशाह की शहादत हुई, अगे जाके जिक्र करांगे। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह 11 सालों की उम्र सारी जिस दिन तक के बैठे, तो थोड़ा जहा वक्त होर लंघिया, तो जदों भी हाकम किसी को डराउना चाहता है ना, उदों मौत की सजा देता है। लोग लाउट, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी अडोल ने, बल्कि उन्होंने अकाल तख्त की सिरजना की, अकाल मूंगे की सिरजना की। ढाडी वारां पाउण लगे, गुरु घर में वीर रस प्रतख तौर पर प्रगट होया। शस्त्र नाल शास्त्र दोनों चीज़ां साझियां हो गई। झुकण की बजाय अणख नाल जिउण की जाच आ गई। जहांगीर नूं इह गल चंगी ना लगी। दूजी गल, चंदू नूं गुरु घर की नित दिहाड़े हुंदी चढ़ाई जिहड़ी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਮੀ, ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। नजूमी नूं ज्योतिषी नूं पैसे दिते भी तू जहांगीर नूं भरम पा। उन्होंने भरम पाया भी तेरे उत्ते बड़ी मुसीबत आने वाली है, तेरा राज भाग भी चला जाएगा। कह लगे मैनूं की करना चाहिए। कह लगे कोई जवानी पहरे विच होवे, चंगी कुल विच होवे, जप तप दा मालिक होवे, ते उन्होंने कह दे कुछ समा एकांत विच मेरी खातर जप तप करे, ते फिर तेरी मुसीबत टल सकती है। उन्हें पूछा ऐसा कौन हो सकता है? उस वेले चंदू ने जवाब दिता भाई गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी। याद रखियो जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह को बुला के ते गुरु घर की चढ़ती कला के कारण उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में, तुहानूं किसी को वक्त मिले होवे, ग्वालियर का किला बड़ा देखने वाला है। उत्थे 86 कैदी कैद किए जाते सन। उत्थे वो कैदी होंगे सन जिन्होंने उम्र भर उत्थे जिंदगी गुजार के मरना होता है, बाहर नहीं होते। गुरु हरगोबिंद साहब जी को उत्थे बंद कर दिता गया। तो जितना भी सरकारी राशन मिलता है वो सतगुरु ने उत्थे लंगर ला दिता। तो गुरु घर का श्रद्धालु उस वेले का जेलर जिहड़ा है वो भाई हरदास है। गुरु जी का खाना प्रशादा पानी उन्होंने घरों। सिख संगतां में भी हलचल मची। बहुत गुरु के प्यारे 1612 के विच हजूर नूं ग्वालियर के किले च बंद किया सी। ते बहुत गुरु के प्यारे पंजाब की धरती तो जाते सन, अगे मुलाकात करने का वक्त नहीं सी देंदे। वो कंध नूं चुम के अपने दिल की वेदना दस के आ जाते सन। याद रखियो, जहांगीर भी बीमार हो गया। उन्होंने उस वेले नूर जहां भी गुरु घर की श्रद्धालु बन चुकी हुई सी। साईं मियाँ मीर भी गुरु घर का श्रद्धालु सी। वजीर खान एक तुहानूं वक्त मिलिया जदों दरबार साहिब जाओ, जिथे बीबियां दे इशनान करने थां बनाई हुई है, उहदे नाल जिथे दुख भंजनी बेरी जो प्रसिद्ध कर दिता सी, उहदे नाल वजीर खान की थां बनी हुई जिन्होंने 1.5 औरतां मिली सी। ये भी गुरु घर का श्रद्धालु सी।
तो ये सारे दे विच पै के गुरु हरगोबिंद साहिब की रिहाई का प्रबंध किया। जदों सतगुरु रिहाई के चले ने, वो जिहड़े राजे सन कैदी, जिन्हां की जिंदगी नरक बन चुकी हुई सी, गुरु के चरणों से धा मार के रो पे, पातशाह सुनिया सी गुरु कदे मुसीबत में छड्ड के नहीं जाता, बल्कि साथ दे जाता। सानू 4 दिन सुखां दे दिखा के तुर जाओगे, जिंदगी नरक कटनी औखी हो जानी। साहब ने जवाब देता भी मैं नहीं जाना। फिर विचार बनी भी किवें जाना चाहते हो? कह लगे ना राजियां नूं मुक्त करना पएगा। चलाकी करते हैं राजनीतिक लोग। उन्हें आख्या उन्नियां नूं मुक्त कर देंगा जिहड़ा तुहाडा पल्ला पकड़ के तुरेगा। उन्होंने लग्या भी गल च पाउण वाले पल्ले नूं 2 बंदे रिहा की हो जाणगे ते की फर्क पैण लगा। गुरु जी ने उस वेले भाई हरदास नूं कह के 52 कलियां वाला 26 कलियां एक पासे ने, 26 कलियां एक पासे ने। हजूर ने 52 कलियां वाला चोला बनवाया, सब नूं लड़ पकड़ा के जदों ग्वालियर के किले चों बाहर निकल लगे ने, हरदास दीआं अखां चों पानी बह तुरिया। सब पुछण लगे, हरदास कदों दा चाहुंदे भी रिहाई हो जाए? अज रिहाई हो गई ते तेरियां अखां च पानी, खुशी होनी चाहिए। कहेंगे नहीं पातशाह, ये परोपकार तो मन भर है। जिन्हां राजियां नूं लेके चले इन्हां सिख बनना? कहेंगे नहीं। ये पहला इन्हां दे बजुर्ग कोई सिख नहीं? कहेंगे नहीं। कह लगे आने वाले समय च साथ देणगे? कहेंगे नहीं। कहते फिर भी क्यों लेके चले हैं? गुरु ने एक वचन किया सी जिहड़ा अज सानूं पल्ले बनना चाहिए। गुरु ने कहा सी, जो नर आरत कह एक बेरा। जिहड़ा भी मनुख दुखी होके एक बारी कह दे ना, आरत का मतलब होंदा है दुखियारा। जो नर आरत कह एक बेरा, श्री हर गोबिंद मैं अब तेरा। क्या गिनती जो इहां बचावन, निकट न दूट देहूं ते आवन। दुनिया में बचाउणा ते कुछ वड्डी गल नहीं, मैं इहदी अध्यात्मक जिंदगी भी लुटण नहीं दियांगा। एक बारी कह सही आके सिखा, सच करके जानियो। असी किते गुरु का लड़ पकड़ लईए ना, हर सज्जन दाबन लगे हाँ, उहदे कोल एडी वड्डी ताकत है, किसे ना देई बन। फिर विकार, माया, तृष्णा, दवैश कुछ भी सानू अपनी गुलामी नहीं करवा सकते। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन। गुरु सानू अंदरों अमीर करता है। याद रखियो, जे दुनियावी धन कमाउण लग्या भी पाप करने पैंदे ने, सांभ के रखण लग्या भी मुसीबतां झल्लणियां पैंदियां ने, ते आखिर नूं साथ भी नहीं जाता। पर गुरु कृपा करदा है। माणक मोती नाम प्रभ, नाम रूपी गुणा रूपी मोती दिंदा है गुरु। गुरु दिखाउंदा मत विच रतन जवाहर मानक। जे एक गुरु की सिख सुनी, साडे अंदरों की जीवन दे गुणा रूपी मोती लभा देंदे गुरु। सच करके जाने, जिन्हां कोल नाम रूप मोती है, जिन्हां कोल गुणा रूप मोती है, वो कदे लुटे नहीं जाते। उन्होंने सामने भी औखे नहीं होंदे। ये पैदा करने वास्ते, गुणा के पैदा करने वास्ते पाप भी नहीं करने पैंदे। दुनियावी तौर पर भी सामने औखे नहीं। तो तीजी गल चेता रखियो, जे ये साथ भी डंडे ने, दुनियावी धन साथ नहीं देता। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नहीं सन। इनू सन नहीं कोई ला सकता, चोरी नहीं कर सकता। रंग सबे नारायण जेते मन भवन। नारायण के रंग, परमेश्वर के रंग हुण प्यारे लगन लग पे, मन नूं भाउण लग पे। जो रब करदा है वो चंगा लगन लग पिया। अमृत बाणी का एक वचन जरूर चेते होएगा तुहानूं, आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी। जो जिस भावै नानका साई कर चंगी। सोई कर चंगी, मैनूं कोई चंगा लगदा है मालिक जी जो तैनूं भाउंदा है। असी हर रोज़ अपनी मर्जी दसदे हैं, रब दा प्यारा अपनी मर्जी नहीं दसदा। गुरु नूं पुछदा तेरी की मर्जी है, मैं तेरी आज्ञा अनुसार चलांगा।
रंग सबे नारायणे जेते मन भवन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन। जो हर लोड़े, जो रब तैनू चंगा लगदा है वो कर। मैनू तेरे कीते ते इतराज खत्म हो गए, मैनू तेरा कीता चंगा लगन लग पिया, मैनू तेरा कीता मन नूं भाउण लग पिया। सोई जी करन, तेरे जीव कोई कुछ करते नहीं तेरी रजा विच चलण वाले, तेरे हुक्म विच बन्ने हुए, जो तैनू चंगा लगदा है, जो मालिक नूं भाउंदा है, परमेश्वर नूं भाउंदा है, वही चंगा लगदा है, वही रब दे प्यारे नूं चंगा लगदा है। छोटी जी बेनती और करनी, याद रखियो जे जेठ के महीने ही, जेठ सुदी चार, सुदी ते बदी दो ने। जदों चंद्रमा छुप जाता है हनेरे पक्ष नूं बदी कहते हैं, जदों चंद्रमा चढ़ जाता है उसनूं सुदी कहते हैं। शुक्ला पक्ष भाव चानण वाला पक्ष। मस्या, मस्या शब्द मस तो बनिया, मस शब्द कालक तो बनिया। जदों पूर्ण तौर पर कालक हनेरा छा जाए उन्होंने मस्या कहते। मस्या तो चौथे दिन 30 मई 1606 ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 3 दिन ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 2 दिन ਪੂਰੇ ਕਹਿਰ ਧਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੜ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਦੀ ਸੜਨ, ਇਹਦੀ ਅਗਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਤਪਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ सब तो पहला उबड़ की देग विच पवाया। याद रखियो जे, फिर तत्ती तवी ते बिठाया, फिर उबड़ की रेत पाई। हजूर सच्चे पातशाह दा समुचा बदन ही छाटे छाटे हो गया। इस हड्डियां वखरियां हो गई, चमड़ी वखरी हो गई, फिर भी मेरा दाता तत्ती तवी ते बैठ के रब दे भाणे नूं कौड़ा नहीं कह रहा, माड़ा नहीं कह रहा, उत्थे बैठ के भी कह रहा तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पदार्थ नानक मंगे। इहो जी अवस्था विच भी ये पहले शहीद ने एशिया के, इहो जी अवस्था विच भी मालिक के चरणों में जुड़ के रब्बी भाणे नूं मनना। भाई वीर सिंह की कविता बड़ी प्यारी। वो कहते एक बारी मैं वगदे पानी के किनारे बैठ गया, जदों नींद ला के तकीए, बहुत ध्यान नाल तकीए, तो यूं लगता भी ये पानी नहीं मेरा मन ही है। मन खुल गया बिच, बहदा वगदा पानी देख के मेरा मन उस विच बह तुरिया। सोहना सवाक्ष सुंदर ते निर्मल मेरा मन उस विच जा खुरिया। ऐ पर डाटी चीस सी लगी, जां पत्थरां विच वज्जा। पानी चों तुरिया जांदा, कई बारी पत्थरां नाल टकराउंदा। मेरा मन विच जुड़ गया सी ते जदों पानी वजदा मैनूं लगदा मेरे मन ते भी ठोकर वजदी। बहदा वगदा पानी देख के मेरा मन उस विच बह तुरिया। सोहना सवच्छ सुंदर ते निर्मल मेरा मन उस विच जा खुरिया। ऐ पर डाढी चीस सी लगी, जां पत्थरां विच वज्जा। आखर ठेडे ठुडे खा के जां घरां नूं मुड़िया। पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। जदों विच पत्थरां दे वज्जिया पानी, मैनूं लग्गिया मेरा मन भी ठोकरां खांदा है। मैं वखरा हो गया, मेरे कोलों नहीं झल्लिया गया। मैं उठ के तुर पिया पानी के किनारे तो। भाई वीर सिंह कहते पिछों पानी चों आवाज आई, पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। ठोकरां बाद ना मंजिल मिलदी, दुखां बाद ना जारी। जेड़ा ठोकरां खाण तो गुरेज कर जाए वो मंजिलां ते नहीं पहुंचदा। जेड़ा दुखां तो सोच लवे
मैनू झलने औखे ने, वो कदे यारियां नहीं निभाउंदा। कहन लगे भलिया यारी तोड़ के तुर चलिया, गुरु अर्जन पातशाह ने यारी निभाई। तत्ती तवी ते बैठ के भी मालिक दे भाणे नूं मिठा करके मन लिया। साईं मियां मीर कल्प गए, साईं मियां मीर कल्प गए। एक बारी उन्हें अर्थ पूछे संदातिया, पंक्ति के अर्थ नहीं मैनू समझ लगते। पंक्ति है तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। कोई ऐसा भी हो सकता है जिहड़ा तन मन काट देवे ते धर्म की खातर अपने अपने अग विच साड़ लवे। हजूर ने उदों तो कुछ न कहा, जदों तत्ती तवी ते बैठे ने साईं मियां मीर आया, कुरला उठिया गुरु अर्जन पातशाह नूं तक के कहन लग्या, पातशाह ये की करदे हो? हजूर कहन लगे, साईं जी तुहाडी उस दिन पंक्ति के अर्थ पिया कर रहे हैं, देखो ध्यान नाल अर्थ हो रहे हैं। तन मन काट काट सब अर्पी, बिच अग्नि आप जलाई। कोई शक तो नहीं रह गया। सच करके जाने हो, जिस दिन मालिक के चरणों में जुड़ गए, जो हर लोड़े सो करे, सोई जी करन ओही जीव करते। मालिक के भाणे नूं मिठा मनते हैं। मीत करे सोई हम माना, मीत के कर्तव्य कुशल समाना। जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए धन। जिन्होंने मालिक ने अपने बना लिया, वो धनता के योग ने, वो कबूल पै गए ने मालिक दी नज़रां विच। आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन। ये गल चेता रखियो। जे मैं सोचा, ये बड़े ध्यान नाल सुनियो, रब की कोई कीमत नहीं है। जे मनुख ये सोचे भी इतने पूजा पाठ, इतनी तपस्या, इतने संकट झल के रब मिल जाता है, तो सच करके जाने कदों दे पानी। इत्थे बाबा लेना सतसंग सेवा करता है तां कबूल पैंदा। उदों 25 साल वडेरी उम्र वाला वो 12 साल सेवा करता है तां कबूल पैंदा। दूजे पासे 5.5 साल का बच्चा वो कबूल पै गया, वो गुरु बन गया। क्योंकि इत्थे कोई मुल नहीं, ये बख्शिश है। मना जितना नमाना हो जाएगा उतना अंदरों भरदा चला जाएगा। सहबागते ने आपन लिया जे मिले, विछड़ क्यों रोवन। साधु संग परापते नानक रंग मनन। कहिए गुरु की संगत विच आ, रब की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अते जिस दिन मालिक की प्राप्ति हो गई, उस दिन जिंदगी का रंग मानन लग पवेगा। दो शब्द बड़े ध्यान नाल सुनो। एक हुंदा जानना, एक हुंदा पहचानना, एक हुंदा मानना। दुनिया बहुत जानती है इस गल को, दुनिया पहचानती है, पर मानदा नहीं कोई। मानदा कोई गल है जिहदे उत्ते रब की कृपा है। मैनूं कितना सुख रब ने दिता है, कितना कुछ मेरे कोल है। उन्होंने मानते तो बहुत घट लोग ने, बैंक भरते हैं, घर भरते हैं, गड्डियां महंगियां ने, पर मानता नहीं कोई। चिंतत ही जिसै सब कोई, चेता एक तही सुख होए। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मनन। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। ਉਹਦੇ जिंदगी रूप सारा जेठ का महीना भाव समੁੱਚਾ जीवन ही ਉਹਦਾ आनंद मनन वाला बन जाता है। असी तो जबानों ही कहने हैं ना, आनंद भैया मेरी मारी सतगुरु में पाया। वो आनंद मानते ने। हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके भाग मथन। जिहदे उत्ते मालिक कृपा करदा है, रहमत बख्शिश करदा है, वो जेठ का महीना भाव समुची जिंदगी रंगीला आनंद विच गुजारते हैं। वो रो रो के जीवन नहीं गुजारते, खुशियां भरिया जीवन गुजारते हैं। गुरु कृपा करे आप भी मालिक नाल जुड़ जाइए, फिर सानू सਦੀवी मिलाप रब दा निरंकार दा हो जाएगा। इतनियां बेनतियां कबूल भुल्ला ना छटाते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ